شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مضافاتی علاقے کی ویران سڑک پر سناٹا ڈیرے ڈال چکا تھا۔ حرم، جس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، اپنے کالج بیگ کے اسٹرپس کو سختی سے تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا کالج گروپ ہسٹوریکل ٹرپ پر آیا تھا، لیکن تصویریں کھینچنے کے شوق میں وہ کب راستہ بھٹک کر اس پرانے شہر کی تنگ اور پریچ گلیوں میں آ نکلی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ دفقتاً اسے ایک پرانی حویلی نما عمارت کے باہر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ اس کے پاس ایک شخص سیاہ پینٹ شرٹ پوش، ہاتھ میں سگریٹ تھامے کسی گہری سوچ میں گم کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ دیکھنے والے پر ہبت طاری ہو جائے۔ حرم نے ہمت جمع کی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ پلیز میری مدد کریں، میں اپنے کالج گروپ سے بچھڑ گئی ہوں، مجھے یہاں کے راستے نہیں معلوم، حرم نے ہامتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ وہ شخص جو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ اور گینگسٹر ابرار پاشا تھا، نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے اپنی گہری بیزار نظریں اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی اکتاہٹ تھی۔ میں بچوں کی مدد نہیں کرتا، گو، ابرار نے سخت لہجے میں کہا اور دوبارہ سگریٹ کے دھوئیں میں گم ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ یہ مختصر سا جملہ اسے بھگانے کے لیے کافی ہوگا، لیکن حرم، جو اپنی ضدی طبیعت کے لیے مشہور تھی، یہ سن کر جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ اس کا خوف ایک لمحے کو غصے کے پیچھے چھپ گیا۔ واٹ، بچی؟ اور مسٹر انکل، میں اس سال 20 سال کی ہو جاؤں گی۔ بچی نہیں ہوں میں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اس کے سینے کی سمت اٹھا کر گویا اس چیلنج۔ ابرار پاشا، جس کے نام سے بڑے بڑے سورمار تھر تھر کانپتے تھے، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کے بال پڑے۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینک دی۔ اس کے جھک کر اپنی سرد اور عقابی نظریں حرم کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تمیز سے لٹل گرل، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کس سے بات کر رہی ہو۔ 1 منٹ میں غائب کر سکتا ہوں تمہیں اس دنیا سے۔ اس کا لہجہ اتنا پست اور خطرناک تھا کہ حرم کی بدن میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن حرم کی زبان اس کے دماغ سے تیز چلتی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ زیادہ گینگسٹر بننے کی ایکٹنگ مت کریں مسٹر گینگسٹر انکل، میں نے ایسی بہت سی فلمیں دیکھ رکھی ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ مڑی اور بھاگنے کا ارادہ کیا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کی کلائی ابرار کے آہنی شکنجے میں آ گئی۔ آہ، مجھے چھوڑیں، مجھے، حرم چلائی۔ کھیل ختم ہوا لڑکی، ابرار نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حرم کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئیں۔ تمہاری زبان تمہاری جان لے لے گی کسی دن۔ تم نے ابھی تک اس شہر کا اصل اندھیرا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لمحے دور سے گاڑیوں کے ٹائروں کے رگڑنے کی آواز آئی اور 2-3 کالی گاڑیاں تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ ابرار کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس نے حرم کو گاڑی کی طرف دھکیلا۔ بیٹھو اندر، اس نے حکم دیا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ آپ مجھے اغوا کر رہے ہیں، حرم نے مزاحمت کی۔ اگر باہر رہی تو دشمن کی گولی تمہیں اغوا کرنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی۔ ابرار نے زبردستی پچھلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ حرم کا دل اب حقیقت میں ڈوبنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی معمولی بدمعاش کے ہتھے نہیں چڑھی، بلکہ یہ شخص واقعی خطرہ ہے۔ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ ہوئی، پیچھے سے گولیوں کی آواز سنائی دی۔ حرم نے چیخ مار کر اپنے کان بند کر لیے اور سیٹ کے نیچے دب گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو تم بہت بڑی 20 سال کی عورت بن رہی تھی۔ ابرار نے تیزی سے گاڑی موڑتے ہوئے آئینے میں اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھا اور تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ حرم نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو انکل نہیں کہوں گی۔ ابرار نے گہری سانس لی۔ اس لڑکی سے نے اس کی زندگی کی پرسکون مگر خونی معمول میں اچانک ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا تھا جس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب اسے اس بچی کو نہ صرف بچانا تھا، بلکہ اپنے اس وحشیانہ ماحول میں محفوظ بھی رکھنا تھا۔ حرم کی سسکیاں گاڑی کے اندر گونج رہی تھیں، جبکہ باہر سڑکوں پر ابرار بادشاہ کی دشمن گینگ کے ساتھ خونی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ یہ ان کی کہانی کا محض آغاز تھا، ایک ایسی کہانی جہاں ایک گینگسٹر کی سرد دنیا ایک معصوم لڑکی کی چل لہروں سے ٹکرانے والی تھی۔ گاڑی سڑک پر بجلی کی مانند دوڑ رہی تھی، پیچھے سے آنے والی دشمن گینگ کی گاڑی مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ حرم، جو اب تک صرف فلموں میں ایسے مناظر دیکھتی تھی، گاڑی کی پچھلی نشست کے نیچے دبکی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی کہ گولیوں کی آوازیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ سر نیچے رکھو، ابرار نے داڑھ کر کہا اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے سے اپنی پسٹل نکال کر کھڑکی سے باہر فائر کیا۔ اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ ایک دو دھماکے کے ساتھ پیچھے آنے والی ایک گاڑی الٹ گئی، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے تعاقب کے بعد ابرار نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں پیچھے ایک وسیع و عریض فارم ہاؤس۔ یہ اس کا وہ خفیہ ٹھکانہ تھا جس کا علم اس کے خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ باہر نکلو، ابرار نے گاڑی سے اتر کر حرم کا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے میرے کالج چھوڑ دیں پلیز، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔
इब्रार ने इसे घसीटते हुए हवेली के बड़े हॉल में दाखिल किया, जहाँ इसके मसलह गार्ड्स अलर्ट खड़े थे। तुम्हें वहाँ ले जाना तुम्हारी मौत को दावत देना है। शहर के हर कोने में दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इन्हें पता चल चुका है कि तुम मेरे साथ हो। अब तुम इनके लिए कमज़ोरी हो, मेरे लिए जिम्मेदारी हो। इसी लम्हे इब्रार का खास आदमी शादेब तेजी से अंदर दाखिल हुआ। पाशा, बुरी खबर है, दुश्मनों ने सीसीटीवी फुटेज से इस लड़की की शनाख्त कर ली है और इसे एक की कमज़ोरी समझकर उठाने का प्लान बना रहे हैं। अगर ये अपने कॉलेज में कर गई तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इब्रार के माथे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि इसके दुश्मन कितने सफाक है। हरम जैसी मासूम लड़की इनके लिए महज एक मोहरा थी। इसे यहाँ रखने का कोई कानूनी जवाब चाहिए शादेब, वरना पुलिस और मेरी जान नहीं देगी और दुश्मन इसे अगवा का रंग देंगे। इब्रार ने तलखी से कहा। इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पाशा, सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का। शादेब ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर ये आपके निकाह में हो तो कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, ना कानून न दुश्मन। हरम का सांस जैसे हलक में अटक गया। निकाह? पागल हो गए हैं आप लोग? मैं इस संदिग्ध शख्स से निकाह क्यों करूँगी? मुझे घर जाना है, वो ज़ोर से चिल्लाई। इब्राहिम पाशा ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। इसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। सुनो लड़की, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अभी इस दरवाजे से बाहर जाओ और मेरे दुश्मनों की गोली का निशाना बनो, या इनकी कैद में जाकर जलील हो, या फिर खामोशी से इस कागज़ पर दस्तखत करो और मेरी पनाह में रहो। ये जुल्म है, आप मुझ पर दबाव डाल रही हैं। हरम ने चीख कर कहा, लेकिन इसके अंदर का खौफ इसे बता रहा था कि इब्रार सच कह रहा है। बाहर की दुनिया इस वक्त इसके लिए मौत का कमा बन चुकी थी। मौलवी साहब को बुलाओ। इब्रार ने हरम की बात को नज़रअंदाज करते हुए हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में हवेली के कमरे में कादी साहब पहुंच गए। फिज़ा में अजीब सी संगीनी थी। एक तरफ शहर का सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर था और दूसरी तरफ एक डरी हुई 20 साल लड़की, जिसकी ज़िंदगी चंद घंटों में पूरी तरह बदल चुकी थी। हरम बिनते असलम, क्या आपको इब्रार पाशा वल्द सिकंदर पाशा के साथ ये निकाह कबूल है? हरम की हिचकियाँ बंद गईं। इसने इब्रार की तरफ देखा, जो खामोशी से दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। हरम ने बंद आंखों से अपने वालिदैन का सोचा, अपने ख्वाबों का सोचा, लेकिन मौत का खौफ सब पर गालिब आ गया। कबूल है, इसने बहुत मध्यम आवाज़ में कहा, जैसे अपनी रूह का सौदा कर रही हो। निकाह के कागजात पर दस्तखत होते ही इब्रार पाशा ने काजी साहब को रुखसत किया और हरम के करीब आया। इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की। मुबारक हो मिसेस पाशा, अब तुम एक गैंगस्टर की मलकियत हो। यहाँ से भागने की कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। हरम ने नफरत भरी नज़रों से इसे देखा। आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे कैद कर लिया है। मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं करूँगी मिस्टर गैंगस्टर। इब्रार के लबों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट आई। मोहब्बत? वो तो मैं खुद से भी नहीं करता। तुमसे क्या करूँगा? मुझे बस तुम्हारी जान बचानी थी, क्योंकि तुम मेरी वजह से खतरे में पड़ी हो। अब इस कमरे में जाओ और खामोशी से सो जाओ। कल से तुम्हारी ज़िंदगी के नए असूल शुरू होंगे। हरम भागते हुए कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ इसकी हंसती खेलती कॉलेज लाइफ और कहाँ ये खूनी दुनिया और ये बेरहम शौहर। दूसरी तरफ इब्रार हवेली के बरामदे में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। इसने ये निकाह सिर्फ इसे बचाने के लिए किया था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि छोटी सी लड़की इसके पत्थर जैसे दिल में दरारें डालने वाली है। इसने एक और सिगरेट जलाई। जंग तभी शुरू हुई थी। रात भर हरम की आंख नहीं लगी थी। हवेली के इस पुरशवा कमरे की दीवारें इसे काटने को दौड़ रही थी। रेशमी पर्दे, कीमती फानूस और मखमली बिस्तर सब इसे एक सुनहरी कफ्स की मानिंद लग रहे थे। इसने सारी रात खिड़की के पास बैठकर गुजारी थी। बाहर खड़े मसलह गार्ड्स की आहटें इसे याद दिलाती रहीं कि वो अब आज़ाद नहीं रही। वो इब्रार पाशा की कैद में थी। वो शख्स जिसके नाम से शहर कामता था और अब वो इसका शौहर था। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे के रोशन तनान से अंदर आई, हरम ने आईने में अपना अक्स देखा। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी और चेहरे पर थकन के गहरे साए थे। इसने गुस्से से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, तय कर लिया और हिम्मत नहीं हारेगी। अगर इस गैंगस्टर अंकल को लगता है कि मैं डर कर कोने में बैठ जाऊंगी तो वो गलत सोच रहे हैं। इसने खुद से अहद किया। वो कमरे से बाहर निकली तो सामने एक तवील राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ कदीम तस्वीरें लगी थीं। नीचे हॉल में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ इब्रार पाशा अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ और ऊपर काले रंग की बास्कट में वो पहले से ज़्यादा पाक वकार मगर इतना ही शफाफ लग रहा था। हरम खामोशी से जाकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इब्रार ने अखबार के पीछे से एक नज़र इसे देखा और फिर दोबारा पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। नाश्ता करो। इसकी आवाज़ हस्बे मामूल सपाट हुक्म के लहजे में थी। मुझे भूख नहीं है, मुझे वापस जाना है, हरम ने हड्डनमी से कहा। इब्रार ने अखबार मेज़ पर रखा और टेक लगाकर बैठ गया। इसी गहरी बोरियां कि हरम के चेहरे पर जम गई। वापस कहाँ? अपने कॉलेज या इस घर जहाँ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप
तुम्हारी गुमशुदगी खबर सुनकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। हरम का रंग उड़ गया। क्या क्या हुआ? मेरे पापा को घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, अब ठीक है। इब्रार ने सुकून से चाय का सिप लिया। लेकिन अगर तुम अब भी वहाँ गई तो तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा, तुम मेरी कमज़ोरी हो, वो तुम्हारे वालिदैन को डाल बनाकर मुझ तक पहुँच जाएंगे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से इनकी जान खतरे में पड़े? हरम दोबारा कुर्सी पर ढेर हो गई। इसकी आंखों में दोबारा आंसू भर आए। आप इतने बुरे क्यों हैं? आपने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला? मैंने तुम्हें नहीं डाला, तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी। इब्रार का लहजा तलख हो गया। और अब तुम मेरी बीवी हो। इस हवेली के कानून अब तुम्हारे लिए भी वही हैं जो मेरे लिए हैं। तुम इस चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रखोगी जब तक मैं न कहूँ। हरम ने मेज़ पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गई। फिर अचानक इसके जहन में शरारत सूझी। अगर वो इसे कैद रखना चाहता था तो वो इसकी ज़िंदगी अजीर्ण कर देगी। ठीक है मिस्टर पाशा, मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन याद रखें मैं कोई खामोश गुड़िया नहीं हूँ। मुझे शॉपिंग चाहिए, मुझे मेकअप चाहिए, मुझे हर वक्त आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। इसने तीखे लहजे में कहा। इब्रार के लहू पर एक हल्की सी तकरीबन ना होने के बराबर मुस्कुराहट आई। इसे इस लड़की की हिम्मत पर हैरत हो रही थी। शॉपिंग? बाहर गोलियों की बुछाड़ है और तुम्हें लिपस्टिक की फिक्र हो रही है? जी हाँ, क्योंकि मैं 20 साल की होने वाली हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी आप जैसे बोरिंग इंसान की वजह से ख़राब नहीं करूँगी। हरम ने प्लेट में आमलेट रखते हुए कहा। इस वक्त शादेब अंदर दाखिल हुआ। पाशा, बाहर कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाभी से मिलना है। इब्रार के तेवर बदल गए। कौन लोग? मीडिया वाले और कुछ मकामी मुअज़्ज़िज़ीन। निकाह की खबर आग जंगल की आग की तरह फैल गई है, शाह ज़ेब ने परेशानी से कहा। इब्रार उठ खड़ा हुआ। इसने हरम की तरफ देखा जो बड़े मज़े से पराठा खा रही थी, जैसे इसी की किसी बात की परवाह ना हो। इसने झुककर मेज़ पर हाथ रखे और हरम के चेहरे करीब हो। अब सुनो, बाहर मीडिया वाले हैं, हम जा रहे हैं। तुम्हें खुशहाल दुल्हन की तरह एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी गलत बोला या मेरी शिकायत से तो याद रखना मैं वाकई वो गैंगस्टर बन जाऊँ जिससे दुनिया डरती है। रब ने इसकी आंखों में देखा, वहाँ वाकई एक हेबत थी। इसने थूक निगला और सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। इब्रान ने जेब से इसका फ़ोन निकाला, मेज़ पर पटक दिया। सिर्फ कॉल्स के लिए, लोकेशन ऑन की तो फ़ोन तोड़ दूंगा। वो दोनों बाहर निकले। अब बरामदे में कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। इब्रान ने बड़ी महारत से अपना हाथ हरम के कंधे पर रखा, जैसे वो दुनिया का सबसे मोहब्बत करने वाला शौहर हो। हरम को इसके लम्से का अजीब सी तपिश महसूस हुई। वह सख्त और गर्म था, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। जी, ये सच है कि हमारा निकाह का राज सादगी से हुआ। हरम मेरी फैमिली फ्रेंड थी और हमने इसे निजी रखने का फैसला किया था। इब्राहिम ने मीडिया के सामने जो इतनी सफाई से बोला कि हरम खुद भी हैरान रह गई। एक रिपोर्टर ने हरम की तरफ माइक किया। मोहतरमा, क्या आप इस निकाह से खुश हैं? हरम ने इब्रार की तरफ देखा। इब्रार की गिरफ्त इसके कंधे पर थोड़ी सख्त हुई, जो एक खामोश दम की थी। हरम ने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा। जी बिल्कुल, पाशा साहब जितने बाहर से सख्त दिखते हैं अंदर से इतने ही अंकल टाइप है। मेरा मतलब है हमदर्द हैं। इसने शरारत से इब्रार की आंखों में झांका। इब्रार ने दांत पीसे, लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराना पड़ा। जब मीडिया वाले चले गए तो इब्रार ने झटके से अपना हाथ उठाया। अंकल, तो बात नहीं आओगी? मैंने तो तारीफ़ की थी आपकी। रब ने मासूमियत से घरों अंदर की तरफ भाग गई। इब्रार वहीं खड़ा इसे देखता रहा। इसकी हवेली जो हमेशा कब्रिस्तान जैसी खामोश रहती थी, आज इस लड़की की आवाज़ से गूंज रही थी। इसे एहसास हुआ कि इसने सिर्फ अपनी दुश्मनी मोल नहीं ली थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान बुला लिया था जिससे निपटना इसके बस की बात नहीं थी। रात को जब इब्रार अपने स्टडी रूम में बैठा नक्शे देख रहा था, हरम अचानक अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में एक तकिया था। ये क्या है? इब्रार ने चौंक कर पूछा। मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगी। आप सोफे पर सोएं या मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, इसने ऐलान किया। इब्रान ने कलम मेज़ पर रखा और कुर्सी पीछे की। लड़की, ये मेरा घर है, मेरा कमरा, और तुम मेरी बीवी हो। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? बीवी हूँ, गुलाम नहीं। हरम ने तकिया सोफे पर फेंक दिया। और मुझे आपके पिस्टल से डर लगता है। इसे कहीं छुपा कर रखें, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। इब्रार पाशा, जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, इस वक्त एक 20 साल लड़की के सामने बेबस महसूस कर रहा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे गोली मारे या इसे उठाकर बाहर ही फेंक दे, लेकिन इसकी मासूमियत बेखौफी में कुछ ऐसा था जो विराट के बता दिल को पिघला रहा था। ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी में ही रहूँगा। इब्रार ने हार मानते हुए कहा। हरम की आंखों में जीत की चमक आई। गुड बॉय मिस्टर पाशा। वो कमरे से निकल गई। पीछे इब्रार एक गहरी सोच में छोड़ गई। इसे अपनी हिफाजत से ज़्यादा अब इस लड़की की फिक्र होने लगी थी। इसे लग रहा दुश्मनों की गोलियों से बचना आसान है, लेकिन हरम की बातों से बचना नामुमकिन है। हवेली की खामोशी बज़ाहिर सुकूनदार थी, लेकिन इब्रार पाशा के तजुर्बाकार कान किसी आने वाले तूफान की आहट सुन रहे थे। वो पूरी रात स्टडी रूम में बैठा मॉनिटर पर CCTV फुटेज देख रहा था। इसे मालूम था कि किसी दुश्मन शेरा ने खामोशी अख्तियार की है, तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
हरम जो अब इसके कमरे में गहरी नींद सो रही थी, इसके लिए एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुकी थी जिसका बोझ इसने कभी महसूस नहीं करना चाहा था। रात के पिछले पहर जब शबनम की बूंदें हवेली के बगात को भगो रही थी, अचानक एक जोरदार धमाके ने हवेली की बुनियादें हिला दी। हरम की चीखने के लिए वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी। कमरे के शीशे चनाक से टूटकर फर्श पर बिखर चुके थे। धुआं और आग तपिश राहदारियों से होती हुई कमरे तक पहुंच रही थी। इब्रार, इब्रार, कहाँ हैं आप? हरम ने खौफजदा आवाज़ में पुकारा। इस अपनी ज़िंदगी में पहली बार मौत का इतना करीब से एहसास हुआ था। अभी वो बेड से उतर ही थी कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। इब्रार पाशा, जिसके एक हाथ में खुद का राइफल थी और चेहरे पर खूनकार संजीदगी, अंदर दाखिल हुआ। इसी कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई थी, माथे पर उभरी रगें इसके गुस्से की अक्कासी कर रही थी। नीचे झुको, फर्श पर लेट जाओ, इब्रार ने दाड़ कर कहा। हरम कांपते हुई फर्श पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है? क्या वो लोग हमें मार देंगे? इब्रार ने इसका जवाब देने की बजाय खिड़की से बाहर फायरिंग की। बाहर से गोलियों की थरथराहट और लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। शाहज़ेब और इसके गार्ड्स दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हमलावरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। शाहज़ेब, गाड़ी पिछले गेट पर लगाओ, हम यहाँ से निकल रहे हैं। हवेली का जनूबी हिस्सा शोलों की लपेट में है, इब्रार ने वायरलेस पर हुक्म दिया। इसने मुड़कर हरम को देखा, जो खौफ के मारे सफ़ेद पड़ चुकी थी। इसने अपनी राइफल एक तरफ रखी और हरम के पास आकर इस कंधों से थमा। मेरी बात गौर से सुनो हरम, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हरम ने पहली बार इब्रार की आंखों में सर्द महरी नहीं दी जिसका खासा थी। वहाँ एक अजीब सी तड़प और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। इसने लरजते हाथों से इब्रार की वास्कट को थाम लिया। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िएगा, इसने सिसकते हुए कहा। इब्रार ने इसे उठाया और मजबूती से इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकला। राहदारी धुएं से भरी हुई थी और हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। दुश्मन के कुछ कारबंदे हवेली के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचे, दो मसलह शख्स सामने से नमदार हुए। इससे पहले कि वो ट्रैकर दबाते, इब्रार की गोलियों ने इनका सीना छलनी कर दिया। खून के छींटे दीवारों पर गिरे तो हरम ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे लगा जैसे वो किसी होलनाक ख्वाब में है। आंखें मत खोलो, बस मेरे साथ चलो, इब्रार की आवाज़ के कानों में गूंजी। वो पिछली सीढ़ियों से होते हुए गेट तक पहुंचे, जहां एक बुलेट प्रूफ गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। शाहज़ेब जख्मी हालत में गाड़ी के पास खड़ा दुश्मन को रोक रहा था। पाशा, जल्दी निकले, इन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है, शाहज़ेब चलाया। इब्रार ने हरम को गाड़ी के अंदर धकेला, खुद ड्राइविंग सीट संभाली। जैसे ही गाड़ी हवेली के गेट से बाहर निकली, दुश्मनों की गाड़ियों ने इनका ताक़ुब शुरू कर दिया। ये एक ऐसी खूनी दौड़ थी जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। इब्रार ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन एक मोड़ पर दुश्मन एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इनको टक्कर मारी। गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ा और वह सड़क के किनारे एक दरख्त से जा टकराई। हरम का सर डैशबोर्ड से लगा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धुंधली होती बसारत के साथ इसने देखा कि इब्रार ने इसे अपनी बाहों में छुपाया हुआ था। इसने खुद को डाल बना लिया था ताकि शीशे के टुकड़े या गोलियां हरम को ना लगें। इब्रार के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त हरम का ढीली नहीं हुई थी। हरम, होश में रहो, कुछ नहीं हुआ। इब्रार की आवाज़ दूर से आती महसूस हो रही थी। दुश्मन की गाड़ी से 4 मुस्तलक अफराद उतरे और बंदूकें तान कर इब्रार की गाड़ी की तरफ बढ़े। आज बादशाह का खेल खत्म, इनका लीडर हंस था। इब्रार ने गहरी सांस ली। इसके पास गोलियां खत्म हो रही थी और वह जख्मी था। इसने हरम के चेहरे को देखा, जो बेहोशी की हालत में भी एक पल के लिए इस गैंगस्टर के दिल में ख्याल आया कि अगर इसे कुछ हो गया तो इस लड़की का क्या होगा। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ दूर से सुनाई दी। दुश्मन बौखला गए। इब्रार ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी आखिरी गोली दुश्मन के लीडर के माथे के बीचों बीच मारी। बाकी लोग पुलिस के खौफ से अपनी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची, इब्रार ने हरम को अपनी गोद में उठाया। इसका अपना लिबास खून से तर था, लेकिन इसने डॉक्टरों को अपने पास भटक ना दिया। पहले इसे देखो, इसे खराश भी आई, मैं तुम्हारा अस्पताल जला दूंगा। वह जख्मी शेर की तरह दौड़ा। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में जब हरम को होश आया तो इसने देखा कि इसका हाथ किसी ने मजबूती से थाम रखा है। वो इब्रार था। इसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। वो कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। हरम ने खामोशी से इसे देखा। वो शख्स जिससे वो नफरत करती थी, जिसे वो अंकल कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन आज इसी गैंगस्टर ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आई। नफरत की जगह नामालूम एहसास ने ले ली थी। इब्रार ने आंखें खोली, फिर होश में देखकर लंबी सांस ली। तुम ठीक हो? इसने धीमी आवाज़ में पूछा। हरम की आंखों से आंसू बहने के लिए इसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आप तो कहते हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं है। इब्रार कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने नज़रें फेर लीं। तुम मेरे निकामे हो, यानी मेरी बीवी हो। हरम, पाशा अपनी चीज़ों की हिफाजत करना जानता है। हरम मुस्कुराई, हालांकि इसका दिल अभी भी लरस रहा था। आप बहुत बड़े झूठे हैं मिस्टर पाशा। आपको मेरी फिक्र थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपकी चीज़ हूँ। इब्रार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके हाथ की गिरफ्त हरम के हाथ पर मजीद मजबूत हो गई। इसे एहसास हो चुका था कि लड़की अब इसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो कभी खुद से अलग नहीं कर पाएगा। दुश्मन अब भी बाहर थे। खतरा टला नहीं था, लेकिन इस कमरे में एक नई कहानी का आगाज़ हो चुका था। ऐसी कहानी जहाँ एक गैंगस्टर का गुरूर एक मासूम लड़की की मोहब्बत के सामने घुटने टेकने वाला था। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में फिजा साकन थी। सिर्फ मशीनरी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी।
ابرار پاشا جو پورے شہر کے لیے دہشت کی علامت تھا، اس وقت ایک عام زخمی انسان کی طرح بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر سفید پٹی بندھی تھی، جس پر خون کا ایک ہلکا سا دھبا بھی اب بھی نمایاں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں کی وہی پرانی تیزی برقرار تھی۔ حرم، جو اب پوری طرح ہوش میں تھی، اپنے بیڈ سے اٹھ کر دبے پاؤں ابرار کے پاس آئی۔ اس کے اپنے ماتھے پر ایک چھوٹی سی پٹی لگی تھی، لیکن اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ابرار کی آنکھیں بند ہیں، شاید درد کش ادویات کے اثر سے وہ غنودگی میں تھا۔ حرم نے میز پر پڑے پانی کے جگ سے گلاس بھرا اور آہستہ سے ابرار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابرار نے بجلی کی تیزی سے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے حرم کی کلائی پکڑ لی۔ اس کا رد عمل اتنا فطری و وحشیانہ تھا کہ حرم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے بچا۔ اوہ، آرام سے مسٹر پاشا، میں کوئی دشمن نہیں ہوں، حرم نے سہم کا کہا۔ ابرار نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک لمبی سانس کھانے چلی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنی بیڈ پر لیٹو۔ اس کا لہجہ وہی پرانا سرد تھا، لیکن آواز میں نقاہت صاف جھلک رہی تھی۔ میں آپ کو پانی دینے آئی تھی اور آپ کی پٹی یہ تھوڑی سی خون آلود ہو رہی ہے، کیا میں اسے بدل دوں؟ حرم نے ہمدردی سے پوچھا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ کہاں ہے؟ ابرار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ باہر گارڈز کے ساتھ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس میں ہوں، تو خاموشی سے پانی پئیں اور مجھے پٹی صاف کرنے دیں، حرم نے تھوڑے رعب سے کہا۔ وہ اب اس کے گینگسٹر روپ سے اتنی نہیں ڈرتی تھی جتنی پہلے ڈرتی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ سخت پول کے اندر ایک انسان چھپا ہے۔ ابرار نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ حرم نے قریب پڑا فرسٹ ایڈ اٹھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے زخم کے گرد جمے ہوئے خون کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی انگلیاں ابرار کے کندھے کو چھوئی، ابرار کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اس سے اتنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن حرم کی لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آرام سے، ابرار کی حلق سے ایک دبی ہوئی آواز نکلی جب حرم نے اینٹی سیپٹک لگایا۔ ارے اتنے بڑے گینگسٹر بنتے ہیں اور ایک معمولی سے دوا سے ڈر رہے ہیں، حرم نے چٹکی لی۔ ابھی تو آپ شیر بن کر دشمنوں پر گولیاں چلا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ ابرار نے گور کر دیکھا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، کاش میں تمہیں اسی گلی میں ہی چھوڑ دیا ہوتا۔ حرم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جھوٹ مت بولیں پاشا صاحب، آپ مجھے کبھی وہاں نہیں چھوڑتے۔ آپ جتنی بھی سخت مہر بننے کی اداکاری کی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل موم ہے۔ موم کا دل اور میرا؟ ابرار تلخی سے ہنسا۔ لڑکی، تم نہیں جانتی میں نے کتنے لوگوں کو مٹی میں ملایا ہے، میرا ہاتھ خون سے رنگا ہوا ہے۔ مجھ سے ہمدردی کرنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ حرم کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ اس نے سنجیدگی سے ابرار کو دیکھا۔ انسان اپنے ماضی سے نہیں، اپنے حال سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے کل رات اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ ایک قاتل ایسا نہیں کرتا۔ آپ نے مجھے تحفظ دیا جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ ابرار کے پاس اس وقت اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن اس کا دل کہیں گہرائی میں اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ لڑکی اس کے اصولوں کو توڑ رہی تھی۔ پٹی ہو گئی۔ حرم نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ اب آپ تھوڑی دیر سو جائیں، میں یہیں صوفے پر بیٹھی ہوں۔ تم صوفے پر کیوں؟ بیڈ خالی ہے، وہاں جاؤ، ابرار نے حکم دیا۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میں سو گئی اور دوبارہ حملہ ہوا تو مجھے آپ کے پاس بیٹھ کر زیادہ محسوس ہوتا ہے، حرم نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ یہ سن کر ابرار کے سینے میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اسے تحفظ فراہم کرنے والا تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا، لیکن کسی نے اسے محفوظ احساس سے نہیں جوڑا تھا۔ اس نے بیڈ پر تھوڑی جگہ پر تکیہ درست کیا۔ یہاں بیٹھو، فرش پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس بڑی سختی میں ایک چھپی ہوئی نرمی تھی۔ حرم خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی اور اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند میں اس کا سر آہستہ سے ڈر کر ابرار کے صحت مند کندھے پر آ رہا تھا۔ ابرار نے اسے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ نیند میں کتنا پرسکون تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس نے سوچا زندگی کتنی عجیب ہے، کل تک وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا اور آج وہ اس کی پوری کائنات کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ تم بہت بڑی مشکل ہو حرم، اس نے سرگوشی کر خود بھی آنکھیں موند لیں۔ باہر دنیا ابرار پاشا کے نام سے کانپ رہی تھی، لیکن اس چار دیواری کے اندر گینگسٹر کا غرور ایک لڑکی کی سادگی سامنے شکست کھا چکا تھا۔ ان کی کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ابرار پاشا جو ہمیشہ اپنے دشمنوں کی چالوں اور گینگی سرگرمیوں میں مصروف رہتا تھا، آج کئی گھنٹوں سے اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے باہر کھڑا اپنے باہر لان میں لگی گلاب کی بیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شاہ زیب کی رپورٹ مل چکی تھی کہ اس کے دشمن شیرہ کا گروہ وقتی طور پر روپوش ہو گیا ہے۔ فی الحال کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں حرم کی سسکیوں کی آواز پڑی جو برابر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے خاموش، نہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی، نہ ہی کوئی شرارت۔ ابرار کے قدم خود بخود اس کے قدموں کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ حرم بستر پر بیٹھے اپنے موبائل میں کسی کی تصویر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم اب بھی رو رہی ہو؟ ابرار کی گہری آواز نے اسے چونکا دیا۔ حرم نے جلدی سے آنسو پہنچے اور فون چھپا لیا۔ نہیں، بس وہ کچھ نہیں ہوا پاشا صاحب۔ ابرار اس کے قریب آ کر بیڈ کے پاس سے ٹیک لے کر کھڑا ہو گیا۔ تم اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی ہو نا؟ حرم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔
इसकी खामोशी इब्रार के लिए किसी गोली से ज़्यादा तकलीफ दाती से एहसास हुआ। इसने तहफ़्फ़ुज़ तो दिया लेकिन इसकी खुशियाँ छीन ली हैं। वो एक आज़ाद परिंदा थी जिसे इसने अपने खून आलूद कफ से बंद कर दिया था। तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, इब्रार ने स्पार्ट लहजे में कहा। हरम ने हैरत से सर उठाया। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे पापा से मिलने देंगे? इसकी आंखों में उम्मीद की ऐसी चमक थी जो इब्रार ने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, गाड़ी तैयार है, शादेब साथ होगा, लेकिन एक शर्त पर। इब्रार ने संजीदगी से इसे देखा। तुम वहाँ जाकर ये नहीं कहोगी कि हमारा निकाह मजबूरी में हुआ या मैंने तुम्हें अगवा किया है। तुम वही कहोगी जो हमने मीडिया को बताया था। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वालिद की तबीयत दोबारा ख़राब हो। हरम ने जोश में आकर इब्रार का हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको या इन्हें तकलीफ़ हो। थैंक यू मिस्टर पाशा। शहर के दरमियाने दर्जे के पुरसकून मोहल्ले में जब इब्रार की काली बड़ी गाड़ियाँ रुकीं तो लोग हैरत से देखने लगे। हरम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो गाड़ी से उतरी और तेज़ी से अपने घर के दरवाजे की तरफ भागी। पापा, मम्मा, इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा। अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। इसके वालिद कमज़ोरी की वजह से सोफे पर लेटे थे और वालिदा तस्वीर पढ़ रही थी। हरम को देखती जैसे इनकी जान में जान आ गई। बाप बेटी गले लगकर देर तक रोते रहे। इब्रार पाशा खामोशी से चौखट पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ ख़ानदान में मोहब्बत क्या होती है। इसकी अपनी ज़िंदगी तो बारूद और धुएं में गुजरी थी, जहाँ रिश्ते सिर्फ मफाद के लिए बनते थे। हरम के वालिद ने नज़र उठाकर इब्रार को देखा। इनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि ममनूनियत थी। आप ही इब्रार पाशा हैं? इन्होंने मुँह नहीफ आवाज़ में पूछा। इब्रार ने आगे बढ़कर इनके सामने सर झुकाया। जी, मुझे अफसोस है कि हालात की वजह से मैं आपको पहले इत्तला नहीं दे सका, लेकिन हरम अब मेरे निकाह में है और मेरी जिम्मेदारी है। हरम की वालिदा ने इब्रार के सर पर हाथ रखा। बेटा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमारी बेटी की आंखों में तुम्हारे लिए खौफ नहीं बल्कि एक मान देखा है। बस इसका ख्याल रखना। ये बहुत नादान है। इब्रार ने एक नज़र हरम पर डाली जो अपनी माँ के सीने से लगी मुस्कुरा रही थी। इस लम्हे इब्रार ने दिल में कह दिया, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, वो इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होने देगा। इस दिन कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई दुश्मन नहीं आया, सिर्फ एक टूटा हुआ खानदान दोबारा जुड़ा था। हरम ने अपने कमरे की चीज़ें समेटी, अपनी किताबें उठाई, फिर खुद चलकर इब्रार के पास चलें। इसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो चंद दिन। इब्रार ने पेशकश की। हरम ने सर हिलाया। इब्रार को बाजू थाम लिया। नहीं, अब मेरा घर वो हवेली है जहाँ आप रहती हैं। मैं अपने वालिदैन से मिल ली, अब मेरा दिल मुतमईन है। और वैसे भी आपकी पट्टी कौन करे बदलेगा? आप तो वैसे भी आप दवा से भी डरते हैं। इब्रार बेख्तियार हंस दिया। ये इसकी ज़िंदगी पहली खुली और सच्ची हंसी थी। शायद वो दूसरे गार्ड्स हैरान रह गए कि इनका बददिल पाशा आज एक आम इंसान की तरह हंस रहा था। वापसी के सफ़र में हरम ने गाड़ी में अपना सर इब्रार के कंधे पर रख दिया। इस बार इसे ज़बरदस्ती नहीं बैठना पड़ा था। वो अपनी मर्ज़ी से ये पनाह में थी। इब्रार ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा और वो सिर्फ एक गैंगस्टर एक बच्ची नहीं थी, वो एक दूसरे का सुकून बन चुके थे। सूरज ढल रहा था और उफ़क़ पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। उनकी ज़िंदगियों की तलखियों में अब सूरज मोहब्बत की मिठास घुलने लगी थी। हवेली वापसी का सफ़र खामोशी मगर पुरसकून अपनायत में कटा। हरम के दिल का बोझ उतर चुका था। अपने वालिदैन को अपनी आंखों से सलामत देखकर इसे ज़िंदगी में पहली बार हकीकी सुकून मिला था। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी, लेकिन इसका ज़हन मसलसल इब्रार पाशा के इस रूप के बारे में सोच रहा था जो इसने आज देखा। वो शख्स शहर भर में खौफ की अलामत था। इसके बीमार बाप के सामने सर झुकाए खड़ा था, जैसे कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि फरमाबरदार दामाद हो। हवेली पहुंची तो रात के साए गहरे हो चुके थे। शाहजेब ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला, लेकिन इब्रार ने इशारा किया कि हो जा सकता है। हवेली का माहौल आज कुछ बदला हुआ था। राहदारियों में मामूल की तेज़ रोशनियाँ नहीं थी, बल्कि एक हल्की मध्यम पीली लाइट्स जल रही थी जो माहौल को रोमानवी बना रही थी। आपने लाइट्स क्यों कम करवा दी? क्या फिर से बिजली का मसला है? हरम ने मासूमियत से पूछा। इब्रार के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट जो इसके सख्त चेहरे को यकदम बदल देती थी। हर वक्त सवाल करना ज़रूरी है? खामोशी से मेरे साथ आओ। वो इसे हवेली की बलाई मंजिल पर ले गया जहाँ एक बड़ा टेरेस खुला हुआ था। वहाँ का मंजर देखकर हरम की ज़ुबान कंग रह गई। पूरे टेरेस को सफ़ेद मोती और सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। दरमियान में एक छोटी सी मेज़ लगी थी जिस पर कैंडल लाइट डिनर का इख्तिताम था। फ़िज़ा में गुलाबों की बीनी बीनी खुशबू रची हुई थी और दूर शहर की रोशनी सितारे की मानी चमक रही थी। ये सब क्या है? हरम ने हैरत से पूछा। इसकी आंखें खुशी से फैल गई। तुमने कहा था तुम्हें शॉपिंग मेकअप घूमना पसंद है। इब्रार इसके करीब आया, मेज़ पर के खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स उठाकर उसे थमाया। मैं तुम्हें बाहर तो नहीं ले जा सकता था क्योंकि खतरा अभी तक मुकम्मल टला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी पसंद की चीज़ें यहीं मंगवा लो। हरम ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला तो अंदर हीरों का एक नफीस सेट चमक रहा था। इसकी कीमत लाखों में होगी, लेकिन हरम के लिए इसकी कीमत से ज़्यादा अबरार का वो एहसास अहम था जो इस तोहफे के पीछे छुपा था। आप इतने अच्छे कब से हो गए मिस्टर गैंगस्टर? हरम ने शरारत से आंसू पोंछते हुए पूछा। इब्रार ने इसके दोनों कंधों को थामा और इसे अपनी तरफ मतवज्जह किया। इसका लहजा सर्द नहीं था बल्कि इसमें एक ऐसी तपिश थी जो हरम के दिल को पिघला रही थी। जिस दिन तुमने इस सड़क पर मुझे अंकल कहा था, इस दिन से मेरा सुकून गारत हो चुका था। पहले मुझे लगा कि तुमने एक आफत हो, फिर लगा तुम एक जिम्मेदारी हो, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें अपने वालिदैन से मिलते देखा तो मुझे एहसास तुम आफत नहीं मेरी ज़िंदगी वो रोशनी हो
جس کی تلاش میں برسوں سے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ حرم کا سانس رک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی پتھر دل ابرار پاشا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ حرم، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی، مجھے پتہ بھی نہیں محبت کیسے کرتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر تمہیں ایک کانٹا بھی چبھے تو درد مجھے ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کھونے کا خیال ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور حرم کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم اس گینگسٹر کو اپنا شوہر مان سکتی ہو؟ زبردستی کے نکاح کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے۔ حرم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہیروں کا باکس ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر اپنا سر ابرار کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت کسی جنگی ڈول کی طرح تیز تھیں اور جس کے جذبات کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں تو اس دن ہی ہار گئی تھی جس دن آپ نے مجھے دشمنوں کی گولیوں سے بچانے کے لیے خود کو ڈال بنا لیا تھا۔ مجھے کوئی ہیرے ہی نہیں چاہیے پاشا صاحب، مجھے بس آپ کا تحفظ اور یہ محبت چاہیے۔ اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ ابرار نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس رات حویلی کی فضاؤں نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ وہ گینگسٹر جس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے آج اس ایک لڑکی کی محبت میں قیدی بن چکا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی ایک قلعہ تھی اب ایک گھر بن چکی تھی۔ ان کی کہانی ایک حادثاتی ملاقات سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام ایک لازوال محبت پر ہوا۔ حرم نے ابرار کی زندگی سے تلخی ختم کر دی اور ابرار نے حرم کو وہ تحفظ دیا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ دی اینڈ۔